Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Amish Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is a caselet set which I've taken from previous year's Simcat, and the set says Vikram and Kabir are two traders who deal with rice trading. Each of them has large godowns for storing rice. Rice is stored in cold storage using boxes. Each boxes has a fixed capacity of storing 50 kg of rice. Vikram and Kabir started with the same quantity of rice in storage and the same amount of cash and had enough of both. They purchased or and sold rice by maintaining certain rules of their own. At the beginning of the first day and at the end of the sixth day, the price of rice was rupees 4 per kg. It is also known that the price of the rice was rupees 4 per kg, and at the either it is also known that the price of the rice was rupees 4 per kg at the end of either the second or the third day, but not both. The price of the rice were increased or decreased by rupees 10 per 50 kg at the end of each trading day. Both Vikram and Kabir took buying and selling decision at the end of each trading. The rules that Vikram and Kabir have followed for trading of rice over these 6 days are as follows. Each day, if the price went up, Vikram sold 100 boxes of rice at the closing price. On the other hand, if each day if the price went down, he bought 100 boxes of rice at the closing price. Option B, if point B, if on any day the closing price was above 200 per box, then Kabir sold 200 boxes of rice at the closing price. However, if the price was below rupees 200 per box, he bought 200 boxes of rice at the closing price. All the business transactions were done using cash only. The price of rice either sold or purchased was the only reason behind the change of cash in hand for both the traders. Questions we पढ़ लेते हैं. What is the net change in cash in hand? Vikram, at the end of the uh, what is the change in hand? What is the change in cash in hand of Vikram at the end of the sixth day in comparison of the first day? What can be the maximum amount of cash, maximum amount of change, irrespective increase or decrease in cash in hand of Kabir between the beginning of the first day and at the end of the sixth day? What was the price of rice at the end of the fourth day of Kabir and had 800 boxes of rice more in stock at the end of sixth day in comparison to the beginning of the first day? What is the absolute difference between the price between the opening stock at the beginning of the first day and closing stock at the end of the sixth day of a rise in go down of Vikram? ठीक है. एक केसलेट सेट जिसमें कि दो कैरेक्टर है, विक्रम और कबीर. ये क्या कर रहे हैं? साइल राइस का ट्रेडिंग कर रहे हैं. इधर दे आर परचेजिंग और सेलिंग द राइस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन. अब क्या करा है उनके पास, जब डे शुरू हो रहा है 6 दिन के ट्रांजेक्शन में, डे 0 में उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश भी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री भी है. अब इन्वेंट्री पे क्या है, उनके पास कुछ बॉक्सेस हैं, वो बॉक्सेस का नंबर नहीं दिया हुआ है. ईच बॉक्स हैज 50 केजी ऑफ राइस, जो कि 4 रुपए पर किलो का उन्होंने लिया हुआ है. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि हर दिन जो प्राइस है वो 4 रुपए से कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, और जो चेंज है वो क्या हो रहा है, 10 पर 50 केजी हो रहा है. यानी कि अगर हम देखें पर केजी का बात करें तो 1/5 हो रहा है, यानी कि 0.20 का चेंज आ रहा है पर केजी. ठीक है. इतना चेंज हो रहा है हर दिन, यानी कि किसी दिन अगर 4 रुपए का, तो अगले दिन प्राइस क्या बन सकता है, 4.2 हो सकता है, 3.8 हो सकता है. वेरी नेक्स्ट डे 4.2 से 4.4 बन सकता है, या 4 आ सकता है, और 3.8 का 4 बन सकता है, या 3.6 बन सकता है. एंड ऐसे करके डे 6 तक जा रहा है. इसके अलावा ये कह रहा है कि डे 1 और डे 6 के जब क्लोजिंग हुआ, डे 0 का ओपनिंग, या सॉरी डे 1 का जो ओपनिंग है एंड डे 6 का जो क्लोजिंग है, ये इस दिन जो है 6 रुपए का, सॉरी 4 रुपए का प्राइस था इसका राइस का. ठीक है. और बाकी दिन क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फिगर आउट. अब इसमें एक कंडीशन दी गई है, कह रहा है कि भाई इट इज ऑल्सो नोन दैट प्राइस ऑफ द राइस वाज ₹4 पर केजी एट द एंड ऑफ ईदर द सेकंड और द थर्ड डे, बट नॉट बोथ. या तो सेकंड डे पे या तो थर्ड डे पे वो रहने वाला है, पर दोनों दिन नहीं रहने वाला है. ठीक है. इसके अलावा कुछ कंडीशन दी गई. कंडीशन ये कह रहा है कि अगर जिस भी दिन जो प्राइस ऑफ द गोल्ड है बढ़ रहा है, तो जिस दिन बढ़ रहा है तो विक्रम क्या कर रहा है, 100 बॉक्सेस को बेच दे रहा है, और जिस दिन प्राइस घट रहा है उस दिन वो 100 बॉक्सेस खरीद ले रहा है. तो खरीदने और बेचने के लिए उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इन्वेंट्री भी अवेलेबल है, सो दैट ही कैन सेल. अगर मान लो 6 दिन लगातार वो बढ़ रहा है, तो ही कैन सेल दी प्राइस, सॉरी ही कैन सेल दी 100 बॉक्सेस, मतलब उसके पास 600 बॉक्सेस तो रहे ही होंगे. अगर मान लो 6 दिन प्राइस घट रहा है, तो उसके पास उतना अमाउंट है ताकि वो आराम से राइस को खरीद सके, उतने बॉक्सेस खरीद सके. और बी में क्या दिया हुआ कबीर के बारे में, कबीर क्या कर रहा है, जिस भी दिन जो प्राइस है राइस का 210 पर बॉक्स से बढ़ गया है,
उस दिन वो 200 बॉक्सेस को बेच दे रहा है और जिस दिन वो 200 से कम चला गया है, 200 से कम मतलब ₹4 किलो से कम चला गया, तो वो उस दिन वो बॉक्स 200 बॉक्सेस को खरीद ले रहा है। कुछ ऐसा ये पूरा दे रखा है, ठीक है? अब है क्या मतलब इस तरीके की सेट अगर आपको पेपर मिले आप बहुत ज़्यादा उलझते हो बिकॉज़ देखने में ये बहुत टेम्प्टिंग होते हैं, इनमें कोई डेटा नहीं होता एंड इट इज़ मोर ऑन लॉजिकल डीआई जहाँ पे आपको बहुत सारी लॉजिक लगाना होता है और कैलकुलेशन तो करना ही करना है, ठीक है? द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू फिगर आउट कि भाई प्राइस ऑफ द जो राइस है वो हो क्या रहा है, ठीक है? उसके लिए व्हाट आई हैव डन आई हैव क्रिएटेड अ टेबल। अब मेरे को क्या पता है इतने सारे केसेस बनने वाले हैं, ठीक है? इतने सारे केसेस में लेट्स चेक विद द केस। हमें क्या पता था शुरू हो रहा है डे 0 को वो 4 है, ठीक है? और डे 6 को भी वो ₹4 का है। अब वेरी नेक्स्ट डे क्या हो सकता है वो 0.2 से बढ़ेगा या घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो वो घटेगा, ठीक है? तो 4 का क्या बन सकता है वेरी नेक्स्ट डे 4.2 बन सकता था, ठीक है? 4 का या तो 4.2 बनता या तो 3.8 बनेगा ऐसा, ठीक है? अब 4.2 से वो आगे क्या बन सकता है? 4.4 बन सकता है, 4.0 बन सकता है ऐसा या उसके आगे चलता जाएगा, ठीक है? अब मेरे को इसी तरीके से सारे केसेस को ब्रेक करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू डू इज़ कि इतने सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ द 4 और 4.2 वाला। पहले इसके वाले केसेस देखते हैं। 4 का 4.2 तो अगला क्या होगा 4 हो सकता है, ठीक है? या 4.4 हो सकता है। अब ऐसा समझना। अगर ये 4 है, 4 का 4.2 4 ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे इट कैन इंक्रीज फर्दर और इट कैन डिक्रीज फर्दर ऐसा। अच्छा, इस वाले में अगर हम देखें तो ये 4.2 है, 4.2 का 4.4 बन सकता है, वापस 4.6 बन सकता है या 4.2 बन सकता है। लेकिन यार ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है जिसमें ये बोल रहा था कि या तो डे 2 या तो डे 3 इन दोनों में से कोई एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे वो ₹4 का तो होना ही होना है। दोनों में से एग्ज़ैक्टली एक दिन होना है और इस वाले केस में तो दोनों ही दिन नहीं बन रहे, यानी कि ये जो मैं केस यहाँ से सोचा तो गलत सोचा हूँ। यानी कि यहाँ पे जो 4.2 है इसके बाद ये इंक्रीज़ करेगा ही नहीं, यहाँ पे ये वापस आना चाहिए, ठीक है? तो भी थोड़ा साफ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 4, ये 4 का ये 4 ही रहने वाला है। क्योंकि अब मेरे को पता है कि डे 2 और डे 3 में से कोई एक ही दिन है ₹4 वाला, तो ये यही वाला होना चाहिए था। अब यानी कि अगले दिन क्या हो सकता है, ये 4.2 बन सकता है या 3.8 बन सकता है, ऐसा। अगर ये 4.2 बनेगा, फर्दर ये क्या बन सकता है, 4.4 बन सकता है, ठीक? या एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4.2 से ये 4.0 वापस डिक्रीज़ कर जाए, ठीक है। फर्दर 4.4 का क्या होगा? 4.4 से 4.6 नहीं जाएगा क्योंकि वो 4 नहीं बन पाएगा, ध्यान देना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4.2 बनाना पड़ेगा व्हिच कैन अगेन बिकम 4 और 4.0 का हम 3.8 बना सकते हैं व्हिच कैन बिकम 4 या 4.2 बना सकता हूँ व्हिच कैन बिकम 4। तो यानी कि अपने को यहाँ पे एक केस और मिल गया, ठीक? देख रहे हो? 4, 4 का 20 पैसे बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ गया। तो ये पूरा एक स्विंग में जा रहा है, एक पूरा ऐसा पूरा सही जा रहा है। इधर भी ये हो सकता है 4, 4.2, 4 ऐसा करके चला गया। अच्छा, ये वाले केस पे सोचते हैं कि 3.8 का क्या होगा? तो इधर भी लिख लेते हैं। 4 का 4.2, 4, 3.8। अब 3.8 से क्या हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो ये वापस से ₹4 बन जाता, या तो ये और घट जाता, 3.6 बन जाता। तो अगर 3.6 है, तो अगले दिन मेरे को 3.8 बनाना पड़ेगा, तभी ये 4th मतलब इसके बाद वाले दिन पे ये ₹4 बनेगा। अगर मैं 3.6 को और कम करता हूँ, तो यार ये ₹4 नहीं बन पाएगा। ये पॉइंट तुमको देखना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि ये हो सकता है। अब ये ₹4 पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये फर्दर ₹2 मतलब 20 पैसे से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी कि ये यहाँ पे 4.2 का 4 भी बन सकता है। यानी कि इसका एक और केस बना सकता हूँ यहाँ पे व्हिच इज़ 4, 4.2, 4, 3.8, 4 और 4 का 3.8 और यहाँ पे भी 4, ठीक है? केस चेक कर लेता हूँ, 4 का ₹20 बढ़ा, घटा, ₹20 बढ़ा, सॉरी ₹20 फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। देख रहे हो थ्रू आउट द प्रोसेस हर दिन क्या हो रहा है, ये 20 पैसे का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चल रहा है, ठीक है? अभी मैंने क्या करा 4.2 यानी कि ये वाले केस के सारे केसेस बना लिए हैं। तो कितने केसेस बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि इसके भी इतने ही केसेस बनने चाहिए। अगर आप मॉड्यूल लगाते हो तो मॉड्यूल में इस तरीके का एक पजल सेट है, आपको वो दिखाई देगा। मतलब इफ यू आर अवेयर विद द
आईएमएस के मॉड्यूल मॉड्यूल 2 में पजल बेस्ड सेट था पुराने वाले मॉड्यूल्स में। आई डोंट एग्जैक्ट मेरे को सेट का अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये एकदम ऐसा ही सेट है जहाँ पे वो 6 दिन के अंदर वो एक कदम आगे एक मतलब 1 रुपए आगे 1 रुपए नीचे जाता रहता है, और वहां पे एकदम सिमिलर चीज अपने को यहाँ पे दिखती है, एकदम वो सेम सेट से इंस्पायर्ड सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 4.2 की जगह पे 3.8 लेता तो क्या बनता, चलो उसके भी केसेस बना लेते हैं। 4 का 3.8, यहाँ पे 4 होना ही हुई। अब 3.8 की वजह से क्या हो सकता है, ये 20 पैसा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अगर 20 पैसा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 4 रुपए बनेगा। ठीक, या ये 20 बेटा पैसा घट भी सकता था, ये 3.6 भी बन सकता था। लेकिन अब वही पंगा है ना, अगर 3.6 कर दोगे तो ये दोनों दिन कौन से मिल गए, ये दोनों दिन कैसे मिल गए, ये दोनों दिन आपको ऐसे मिले जहाँ पे ये 4 रुपए है ही नहीं, और अपने को कंडीशन में क्या बोला था, 2 दिन में से, जो कि 2 दिन तुम्हारे कौन से थे, डे 2 और डे 3 ऐसे, जिनमें से किसी एक दिन को वो 4 रुपए का बनाना कंपलसरी है। और यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि यार एक भी नहीं, मतलब ये दोनों ही दिन नहीं बन पा रहे, तो बाई दैट लॉजिक ये जो मैं केस यहाँ पे सोच रहा हूँ ये गलत सोच रहा हूँ, यानी कि ये 3.8 का 4 तो फिक्स होगा ही होगा। ठीक है, अब इसने क्या करा ना, बेसिकली वो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करा, अगर आप कर पाओ तो आप देखो एकदम पैटर्न दिखाई देना शुरू कर जाएगा। ठीक, अब ये 4 रुपए से क्या होगा, ये 4 रुपए से सिमिलर केसेस बनेंगे, ये 4 रुपए से क्या हो सकता है, 4.2 बन सकता था या 3.8 बन सकता था। अगर ये 4.2 है, इस 4.2 से क्या हो सकता था, 4.4 बन सकता था या 4.0 बन सकता था। जैसे कि ये बन गया यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे। ठीक, ये या तो 4.4 बन सकता था या तो 4.0 बन सकता था। 4.4 का 4.6 बना सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये फिर 4 नहीं बनने देगा, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 4.2। अच्छा, इस 4 का क्या बना सकता हूँ, इस 4 का 4.2 भी बना सकता था, इस 4 का मैं 3.8 भी बना सकता था ताकि 4 बन जाए, तो यानी कि ये भी एक पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती थी। ठीक है, तो क्या बना, 4, 3.8, 4, 4.2, 4.0, 3.8, 4। ठीक है, ये मैंने 4.2 के जितने केसेस बना सकता था वो बना लिए। इसी तरीके से 3.8 वाले केस बनाता हूँ, चलो लिख लेता हूँ, 4, 3.8, 4, 3.8 एंड 4। अब 3.8 का क्या हो सकता था, 20 पैसा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, मान लो घटता है, यहाँ पे 3.6 बनाता हूँ और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अगर 3.6 है तो ये 3.6 से और नहीं घट सकता, अगर और घटाऊंगा तो 3.4 बन जाएगा, विच विल नॉट हेल्प मी टू बिकम दिस, 4 रुपए नहीं बना पाऊंगा, तो 3.6 से मैं क्या बना सकता हूँ, 3.8। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये केस रहेगा, बट 4 पॉइंट का 2 केसेस बन सकते हैं, जहाँ पे ये 3.8 भी बना सकता हूँ और इस 4 को 4.2 भी बना सकता हूँ, जिससे कि ये 4 रुपए बन सकता है। ठीक है, अगर ध्यान दो तो कितने केसेस बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरे ये 6 केसेस इधर वाले बने हैं, और इतने ही 6 केसेस आपके यहाँ पे भी बने होंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पे भी आपके 6 केसेस बने होंगे। टोटल कितने केस बने, 12 केसेस है जो कि आपको यहाँ पे बनाने को। अब क्योंकि आई एम फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ अ लॉजिक, तो मेरे को पता है कि यार इसको कैसे चलाना होता है। अगर आप ऐसे हो जिन्होंने कभी नहीं कर रखा है तो भाई ये पेपर वाले दिन पे नहीं करोगे, और ऑब्वियसली अब तो सीख चुके हो और अगर आप मिला तो अब तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से पहले यार एक एक पार्ट अपने हमने भूल गए, ये वाला रूल वाला पार्ट। रूल वाला पार्ट को भी ऑपरेट करना है। रूल में क्या बोला हुआ है, द रूल वाज ईच डे द प्राइस वेंट अप, हर दिन जिस भी दिन प्राइस ऊपर जा रहा है, तो विक्रम क्या कर रहा है, 100 बॉक्सेस को खरीद रहा है, अरे सेल कर रहा है। ठीक है, सेल करेगा, जिस दिन प्राइस कम हो रहा है 100 बॉक्सेस वो, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया ना, जिस दिन वो प्राइस, इसको इधर लिख देता हूँ, ईच डे द प्राइस वेंट अप, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो विक्रम भाई साहब क्या करेंगे, विक्रम सोल्ड, हाँ अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो विक्रम सेल करेगा, हाँ सही तो था, माय बैड। और प्राइस अगर कम होगा तो वो परचेस करेगा। दिस वाज फॉर विक्रम, एंड व्हाट वाज फॉर दिस, इफ ऑन एनी डे द गोल्ड द क्लोजिंग प्राइस वाज अबव 210 पर केजी। ठीक है, द कबीर 210 पर बॉक्स, द कबीर सोल्ड 200 बॉक्सेस एट ऑफ अ राइस, अगर 210 के ऊपर जाता है किसी दिन तो कबीर क्या करेगा, सेल करेगा।
और अगर वो 200 के नीचे आता है तो यानी कि उस दिन वो क्या करेगा, परचेज करेगा। ठीक है, 210 कब जाएगा, ऐसा देखते हैं। 210 का मतलब अ, किसी एक बॉक्स में 50 किलो होने वाले हैं, तो मतलब 4.2 के ऊपर जाना चाहिए तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, 4.2 के ऊपर जाने का मतलब, क्योंकि बोला 210 के ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाने का मतलब आपके पास कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है जहां पे वो ऊपर जाएगा, पहले वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अ, पूरे में 4.2 के ऊपर जाएगा तभी ना ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये समझना 4.2 पे क्या होगा, 4.2 इंटू 50 kg, ये है 210 का। तो कह रहा है कि इसके ऊपर जाने पे वो भाई साहब बेचेंगे, तो यानी कि इस वाले दिन ये वाले केस में बेच सकते हैं। ठीक है, 4.4 और कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है। इस वाले केस में वो बेच सकता है विक्रम। ठीक है, और 200 से कम होना, 200 से कम होने का मतलब 3 पॉइंट नहीं, 4 से कम होने का मतलब है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए इस वाले केस में वो ऐसा खरीद सकता है। ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे 4 से कम वैल्यू है वहां पे जो ये दी अदर गाय कबीर वुड परचेज दी दिस, ये जो बॉक्सेस है ये परचेज करें। ठीक है, मैंने कंडीशन को थोड़ा क्लियरली अपने हिसाब से समझ लिया और कर लिया। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है, उसके हिसाब से दिमाग लगाता हूँ। व्हाट इज द नेट चेंज इन द कैश इन हैंड ऑफ विक्रम एट द एंड ऑफ द सिक्स्थ डे इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट डे। यार ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन निकल गया। मतलब अभी तो यार मेरे को 12 के 12 केसेस हैं। ठीक है, यार 12 केसेस में कैसे मैं निकालूंगा, और अब क्या करा जाए 12 के 12, मतलब समझो क्या मेरे को सारे केसेस में निकालना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि ऐसे क्वेश्चन को करो नमस्ते कि भाई साहब मैं तुमसे एंगेज नहीं हो सकता बिकॉज मैं 12 के 12 नहीं निकाल सकता। ठीक, दूसरा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो जो ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं, नेचर ऑफ ऑप्शंस एकदम यूनिक बोले गए। मतलब प्रिसाइजली 6000 ज्यादा, 3000 ज्यादा, 3000 कम, 6000 कम, यानी कि अगर कोई एक आंसर मिलेगा तो वो सब जगह पे ट्रू होना चाहिए या ज्यादातर इवेंट में ट्रू होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली दो तीन जगह पे लगा के देखूंगा, अगर मेरे को सेम आंसर दो तीन जगह मिला यानी दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और व्हाट आई नीड टू डू इसकी मेरे को 12 के 12 केसेस चेक करना चाहिए, विच इज अगेन नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू इन दी पेपर। मतलब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आई गो विथ कपल ऑफ केसेस, मैं दो तीन केसेस में लगा के दूंगा, क्या मेरे को कोई आंसर मिल रहा है। इफ आई गेट दी आंसर आई टेक कंसिडर दैट आंसर एंड आई मूव फॉरवर्ड, कि मेरे को वो आंसर मिल गया, आई मूव कि हाँ चलो मेरा को ये आंसर तो हो ही गया। ठीक है, अब चलते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं। What is the net change in the cash in hand of Vikram at the end of the sixth day? Sixth day पे उसका कितना है as compared to the first day? ठीक है, पहले दिन कैश कितना था यही नहीं पता अपने को, तो यार ये तो अलग लफड़ा है। तो मान लेते हैं कि भाई विक्रम के पास पहले दिन कैश था 1 लाख रुपए, ऐसा। 1 लाख का मतलब उसके पास कितने बॉक्सेस थे, 4 रुपए के हिसाब से 50 का, 50 किलो का एक बॉक्स अगर बनाएंगे तो 50 किलो का 4 रुपए के हिसाब से कितने का बनेगा, 200 रुपए का एक बॉक्स बन जाएगा। लेट्स से ही हैड 500 बॉक्सेस। ठीक है, 200 इंटू 500 बॉक्सेस, मैं ऐसा मान लेता हूँ। 500 बॉक्सेस सेफ साइड में ले ले, क्योंकि ये बेचेगा खरीदेगा, बेचेगा खरीदेगा। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई जब भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके पास सफिशिएंट कैश भी और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो आई कंसिडर कि चलो 500 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ होगा जब इसने 200 इंटू 500 का इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब 1 लाख पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 लाख के बाद इसने डे जीरो को खरीदा, मतलब इतना तो स्टॉक था ही। डे वन को क्या हुआ है कि 4.2 का हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ा है, बढ़ने की वजह से इसने क्या करा होगा, कुछ स्टॉक बेच दिया होगा। कितना स्टॉक बेचा होगा, 100 क्वांटिटी बेची होगी। ठीक है, अब इसके पास क्वांटिटी कितनी रह गई है, 400 की। ठीक, 400 की वजह से इसके पास पैसा कितना आ गया होगा, क्योंकि इसके पास पैसा आ गया होगा, इसने बेचा होगा। ठीक है, कितना आ गया होगा, 4.2 इंटू ये, यानी कि 210 रुपए का ये बेचा होगा, 210 इंटू 100, यानी कि इसके पास 21,000 रुपए आ गया। अच्छा, नेक्स्ट डे इसने खरीद लिया, क्योंकि इसके अगले दिन क्या हुआ, प्राइस घटा है, तो यानी कि इसने अगले दिन फिर खरीद लिया। कितना खरीदा है, एग्जैक्टली 4 रुपए पे खरीदा, और कितने खरीदे, 100 बॉक्सेस खरीद रही है। तो 100 इंटू कितने का पड़ा, इतने का ना, 50 इंटू 4 कितना होता है, तो 200, हाँ 100 इंटू 200, तो यानी कि 20,000 रुपए इस भाई साहब से और निकल गए। इसका 100 बॉक्सेस ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, डे टू के बाद डे थ्री को फिर प्राइस बढ़ गया। ठीक है,
प्राइस बढ़ा यानी कि इसने फिर बेचा होगा, और कितने का बेचा होगा, 4.2 का बेचा होगा, यानी कि इसको 21,000 रुपए फिर मिल गए, यानी कि इसने 100 स्टॉक और निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे 4.4 का हो गया, भाई इसका स्टॉक और बढ़ निकल गया, यानी कि इसको 100 का स्टॉक और बेच दिया होगा, जिसकी वजह से अब इसने कितने का बेचा, 44 का, मतलब 4.4 का, 4.4 इंटू 5 यानी कि 220 रुपए का, 220 इंटू 100 यानी कि 22,000 रुपए इसके पास आ गए होंगे। ठीक है, फिफ्थ डे में क्या हुआ, 4.2 प्राइस घट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, 21,000 रुपए का हो गया था, और यहाँ पे ले लेते हैं कि 100 इसने और ऐड कर लिया। नेक्स्ट डे इसने, तो थोड़ा हम जगह बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। 21,000 पे आ गए थे, एंड फिफ्थ डे पे, सिक्स्थ डे क्या हुआ, इसने फिर घट आए, तो यानी कि 100 का और बेच दिया होगा, 100 का सॉरी और खरीद लिया होगा, यानी कि 100 का क्वांटिटी और ले लिया, 100 का क्वांटिटी लेने का मतलब इसने फिर 20,000 रुपए और खर्च कर लिए होंगे। ठीक है, यानी कि अब इसके पास कितने पैसे बचे, 1 लाख में से देखो, ये वाला अमाउंट बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, यानी कि इसका कितना हो गया, 43 ऐड हुआ, जिसमें से यहाँ पे ये माइनस हुआ, यानी कि इसके पास कितना आ गया, 1,03,000 रुपए का अमाउंट बचा है, इफ वी गो बाई केस नंबर 1। ठीक, क्या ऑप्शन में 3,000 ज्यादा का आंसर है, ऑप्शन में बी में दिख रहा है यार कि 3,000 हो सकता है, लेकिन जल्दी नहीं दिखाएंगे, अपन क्या करेंगे, एक केस पे और चेक लगाएंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम केस ले लो, लेट्स गो फॉर रैंडम, केस नंबर 5 या केस नंबर 8 ले लेते, चलो। तो केस नंबर या 2 है, 8 बोले तो यहाँ पे 6 यहाँ तक था ना। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8। ठीक, अब सेम चीज यहाँ पे मैं दोबारा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी से नहीं लेने वाला, लेना देना नहीं, तो मैं इधर दिमाग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, लेट्स गो विथ अगेन दिस, देखिए जो पूरी कैलकुलेशन मैं लिखी है, मैं इसको फिर से करने वाला हूँ, देखना, 1 लाख। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने क्या करा, 38 पैसे का, 3.8 रुपीज का, ये वाला था ना, सॉरी, वो हाईलाइट कर लेता हूँ, 3.8 का खरीदा होगा, यानी कि 190 रुपए का ये स्टॉक रहा होगा, 190 का मतलब 190 का मतलब इसने बेच खरीदा है ना, बिकॉज कम हुआ है, तो इसके पॉकेट से 19,000 रुपए निकल गए होंगे। नेक्स्ट डे बढ़ गया, कितना बढ़ा, दो मतलब 4 रुपए हो गया, यानी कि 20,000 रुपए इसको फिर आ गए। ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे फिर घट गया, 19,000 रुपए फिर निकल गए। घट रहा है तो बेसिकली वो खरीद रहा है ना, तो इसकी वजह से वो 19,000 उसके निकल रहे हैं। उसके अगले दिन, ठीक है, फिर घटा 20 पैसे, और कितने का बन गया ये, 18,000 का बन गया है, तो यानी कि -18,000, इतने का उसने और स्टॉक खरीद लिया। ठीक, उसके बाद 3.8 यानी कि अब बढ़ा, अब ये इसने 19,000 रुपए का बेच दिया होगा। ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे इतने का हो गया, यानी कि इसने 20,000 रुपए का और स्टॉक बेच दिया होगा। ठीक है, अब कितना चेंज बचा इसके पास, 19,000, 19,000 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 20 और 20 40 का है, और इधर कितना है, 1,40,000, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो रहा है, 19 और 18, यानी कि 1,03,000 रुपए फिर से अमाउंट मेरा यहाँ पे बच रहा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने रैंडम 2 केसेस में ट्राई करा, तो मेरा आंसर क्या आया है, ऑप्शन नंबर बी। हालाँकि मैंने इसको हर केस में लगा के चेक करा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैंने 5 से 6 केसेस में चेक करा था, एंड फॉर एवरी केसेस द आंसर वाज सेम। बट देन आई रियलाइज़ कि यार पेपर वाले फेज़ में तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, सो आई थॉट कि चलो लेट्स गो विथ रैंडम 2 केसेस। अगर आप कहोगे, मतलब यू कैन ट्राई दिस ऑन अनदर केस आल्सो, कोई भी एक आध केस पे तुम ट्राई कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपका किसी केस में लग रहा है कि यार ये तो आंसर अलग आ रहा है, तो मेरे को आप कमेंट में बताना। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, क्वेश्चन नंबर 2, what can be the maximum amount of change irrespective increase or decrease in cash in hand of Kabir between the beginning of the first day and end of the sixth day। अच्छा, कबीर भाई जो हैं वो क्या करते हैं, वो 210 का खरीदते हैं, 210 के ऊपर का होता है तो बेच देते हैं, और 200 के नीचे का होता है तो खरीद लेते हैं। अब बोला व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेंज इन कैश इन हैंड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे एंड एट द एंड ऑफ द सिक्स डे। अब कबीर भाई का जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे हो रहा होगा, अगर हमको वो केस मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। समझना, जैसे
कबीर अगर यहाँ पे देखो ध्यान दो तो यहाँ पे यार उसको क्या, मेरे को बस ये ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है ना, जब उसका 4.4 होगा तब वो पैसा निकालेगा, और जब 4 रुपए से वो कम जाएगा तो पैसा उसका कटेगा, मतलब वो बेसिकली परचेज करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो तो यार 4 से कम तो नहीं है, यहाँ पे एक इवेंट है जहाँ पे पैसा चेंज हो सकता है, बाकी जगह पे तो वो पैसा चेंज ही नहीं होगा ना। ठीक है, केस नंबर 2 में एक इवेंट में खाली चेंज हो रहा है, केस नंबर 3 में खाली एक इवेंट में चेंज हो रहा है, केस नंबर 4 में एक भी इवेंट में चेंज नहीं हो रहा है, केस नंबर 5 में एक पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है, 3 पे चेंज हो रहा है। आई कैन कंसिडर दिस पार्ट बिकॉज यहाँ पे 3 जगह कबीर विल डू दी ट्रांजेक्शन, बिकॉज 3.8, 3.6, 3.8, तो पॉसिबली यहाँ पे 3 जगह पे हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो आई कैन सी 3.8, 3.8 है तो वो नलीफाई होगा, 3.6 इफेक्टिवली पैसा दिखना चाहिए। बट लेट्स चेक फॉर अदर केसेस ऑल्सो। 4.2, 3.8, 3.8, यहाँ पे भी 2 केसेस हैं, तो आई वोंट बी कंसिडरिंग दिस केस। 4, 3.8, 4.4, यहाँ पे भी 2 ही केस हैं। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में घटा है और एक ट्रांजेक्शन में बढ़ा है। ठीक है, 3.8, 3.8, 3.6, 3.8, नाउ दिस इज समथिंग विच आई शुड बी कंसिडरिंग। केस नंबर 8 ऐसा होना चाहिए जिसको मैं बैंग ऑन करूंगा तो आई गेट द आंसर। अगेन आई वेट एंड आई चेक फॉर अदर केसेस ऑल्सो। 4 से 3.8 नहीं, एक केस, 2 केस नहीं, एक केस, 2 केस, 3 केस, एक केस, 2 केस, यानी कि केस नंबर 8 में आई कैन सी दैट इफ कौन था वो लड़का, कबीर, इफ कबीर गोज बाय केस नंबर 8 तो वहां पे उसका मैक्सिमम चेंज आ सकता है, मतलब मैक्सिमम परचेज सेल होने वाला है। अब वो कितना होने वाला है ये दिमाग लगाते हैं। कबीर क्या करता है, 200 यूनिट खरीदता है या 200 यूनिट बेच देता है, ऐसा ही है ना। 200 यूनिट खरीदेगा या 200 यूनिट बेचेगा। ठीक है, 200 यूनिट में मतलब कबीर क्या करता है, 200 बॉक्सेस ना, सॉरी 200 यूनिट नहीं, 200 बॉक्सेस, यानी कि हर बॉक्स तुम्हारा 50 यूनिट का, तो 200 बॉक्सेस का है। ठीक है, अब लेट्स से कबीर हैड ऑल्सो 1 लाख रुपया, ऐसा ले लेते हैं कि ठीक है, चलो कबीर के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कबीर के पास भी 1 लाख रुपया था। ठीक है, सिंस आई डोंट नीड क्वांटिटी तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं सीधे अमाउंट पे चलूंगा। कबीर ने क्या करा, इस वाले केस में चला। ठीक है, अगले दिन कबीर भाई का क्या हुआ, इसने 200 यूनिट बेच दी, क्योंकि यहाँ तो इसको कम हो रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, 200 यूनिट इसने खरीद ली बिकॉज यहाँ पे सस्ता हुआ। ठीक है, 200 यूनिट खरीदी, कितने की खरीदी, 38 पैसे, 3 रुपए 8 पैसे की। 3 रुपए 8 पैसे बोले तो 190 रुपए किलो की, 190 रुपए का एक बॉक्स होगा, 190 रुपए का एक बॉक्स, यानी कि -38,000 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसने खरीदा है तो इसके अमाउंट, इसके जो पॉकेट में से 38,000 रुपए निकल गए होंगे। वेरी नेक्स्ट डे 4 रुपए हो गए, यानी कि वापस से इसको पैसा मिल गया होगा। कितना मिला होगा, कुछ भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये तो 4 रुपए पे बेचेगा ही नहीं। समझ रहे हो, क्योंकि कंडीशन क्या थी, जब वो 210 के ऊपर होगा तब वो बेचेगा, तो यहाँ पे 210 के ऊपर तो गया ही नहीं, तो यानी पे यहाँ पे तो वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे वो फिर से खरीदेगा क्योंकि यहाँ पे 200 से नीचे का है, तो यानी कि यहाँ पे इसका 38,000 रुपए का पॉकेट से और खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे वो फिर से खरीदेगा, यहाँ पे फिर से खरीदने का मतलब 3,60,000 रुपए में 3.6 है ना, 3.6 में कितना हो जाएगा, 36 इंटू 180, 180 और 200 बॉक्सेस, यानी कि 36,000। ठीक है, 36,000, एंड यहाँ पे एक और कर लेगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38,000। ठीक है, तो जो नेट चेंज आ सकता है, लेट्स से दिस वाज 10 लाख ना, मेरे को ये नहीं पता था कि यार इसका इतना अमाउंट निकल जाएगा, तो लेट्स कंसीडर दिस एज अ 10 लाख का amount। ठीक है, इसको थोड़ा साफ सुथरा सा लिख देता हूँ। मैंने क्या करा, कबीर का मान लिया कि इसके पास 10 लाख रुपए थे, तो 10 लाख में इसने पहला 200 यूनिट यहाँ पे खरीदा। ठीक है, जिसकी वजह से भाई साहब के कितने निकल गए, 38,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 190 रुपए का एक बॉक्स था और इसने 200 बॉक्सेस खरीदे हैं। फिर यहाँ पे भी इसके 38,000 रुपए निकल गए, यहाँ पे इसके निकले हैं करीब 36,000 रुपए, यहाँ पे इसके निकले हैं 38,000 रुपए, यानी कि नेट चेंज कितना आना चाहिए, 38 प्लस 38 प्लस 38 प्लस 36, यानी कि 8, 38 38 कितना होता है, 76, 8 8 8 16, 16 6 22, 22 और 8, 22 और 8 30,
ठीक है, कैरी 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 यानी कि 150 रुपए का नेट चेंज आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? आई होप ये समझ आया, ये बढ़िया क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज़। आपका ये आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यार भाई साहब के 10 लाख में से 1.5 लाख रुपए पॉकेट से निकल गए, क्योंकि इसने यहाँ पे 4 बार ट्रांज़ैक्शन परचेज़ करके खरीदा है। मतलब ऑब्वियसली परचेज़ किया, परचेज़ करके खरीदा है, एज़ इन परचेज़ किया, तो दैट इज़ व्हाई ही हैज़ स्पेंट इतना 1.5 लाख रुपए। तो और वही पूछा था कि कितना अमाउंट चेंज हुआ है, भले घटा या बढ़ा उससे मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज़ द प्राइस ऑफ राइस एट द एंड ऑफ द 4th डे इफ द कबीर हैड 800 बॉक्सेस ऑफ राइस मोर देन इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द 800 बॉक्स ज़्यादा कहाँ पे होंगे? यार ये तो ऑब्वियसली यही वाला केस होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे ये 4 बार खरीदा और हर बार 200 बॉक्सेस खरीदता है। हर बार 200 बॉक्सेस यानी कि इसने 800 बॉक्सेस, अब जब ये डे 6 खत्म होगा तो इसके पास जो भी नंबर ऑफ बॉक्सेस है वहाँ से 800 बॉक्सेस ज़्यादा होंगे ही होंगे, बिकॉज़ 1, 2, 3, 4 चारों दिन ये परचेज़ कर रहा है। उस केस में पूछा है व्हाट विल बी दी अ, व्हाट वाज़ द प्राइस ऑफ द राइस एट द एंड ऑफ द 4th डे ट्रेडिंग डे? तो प्राइस कितना था डे 4 को? कितना था? 3.6 था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 अगर फिगर आउट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 वाज़ सुपर ईज़ी, मतलब ये तो ऐसा बस देखना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द 6th डे ऑफ द राइज इन गोडाउन फॉर विक्रम? अच्छा, विक्रम के लिए कितना? अभी यार विक्रम के लिए ना हमने देखो यहाँ पे मेहनत करी थी। ठीक है, यहाँ से दिमाग लगाते हैं। तो विक्रम के लिए क्या था? अ, विक्रम के लिए यहाँ पे था 500 में से 500 था, तो 500 में से मैंने 400 बना लिया था, यानी कि क्या करा था? 500 था ना, तो थोड़ा जगह बना लेते, तो थोड़ा क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। 500 था, 500 के बाद इसने यहाँ पे बेचा था -100, ठीक है? यहाँ पे खरीदा था +100, यहाँ पे फिर बेचा था -100, यहाँ पे फिर बेचा था -100, यहाँ पे दोनों इवेंट में खरीदा था +100 और +100, तो यानी कि कितना चेंज हो गया? +100 -100 +100 -100 +100 -100, यानी कि 0 यूनिट का चेंज हुआ होगा। अब तुम कहोगे सर यार तो आपने केस नंबर 1 ही लिया है ना, कोई और केस लेके ज़रा दिखाओ। चलो 2-3 केसेस लेते हैं। लेट्स टेक केस नंबर 2, ठीक है? अगेन ये 500 केस 500 यूनिट लेके यहाँ पे करा होगा। अगले दिन क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान देना, माइनस हुआ 100 यूनिट, ठीक है? इसके अगले दिन फिर से प्लस हुआ 100 यूनिट, यानी कि नलिफाई हो गया, फिर से 500 पे आ गया। यहाँ पे फिर 100 यूनिट ऐड हो जाएगा, क्योंकि सॉरी हाँ, ठीक तो है। यहाँ पे 100 यूनिट ऐड हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे परचेज़ खरीदेगा। नाउ यहाँ पे क्या बन जाएगा? 600 यूनिट। 600 यूनिट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेचा, तो यानी कि फिर से वापस आ जाएगा, तो 500 यूनिट। यहाँ पे फिर खरीदा और फिर यहाँ पे बेचा, यानी कि फिर क्या बचा? 500 यूनिट बचा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस कितना आ रहा है? आंसर क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। एक आध केस और चेक कर लेते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई कि यार सही तो जा रहे हैं। लेट्स टेक केस नंबर 12, लास्ट वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, 500 यूनिट पे ये एंट्री हुई थी, ठीक है? अगर ये 500 था, तो यहाँ पे इसने 100 यूनिट परचेज़ किया होगा, ठीक है? सस्ता हुआ है, फिर 100 यूनिट बेच दिया, तो वो सेटल हो गया, 500 फिर बन गया, फिर 100 यूनिट खरीद लिया, ठीक है? यानी कि अभी हो गया, फिर 100 यूनिट बेच दिया, फिर 100 यूनिट खरीद लिया, फिर 100 यूनिट बेच दिया, तो खरीद पे मतलब प्लस माइनस करते-करते वो क्या बन जा रहा है? 0। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का? 0। ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर देखो मेरे को ये सेट का ये जो ये पूरी कहानी थी ना ये वाली, ये मेरे को पूरी कहानी पता थी कि इसको कैसे फिक्स करा जाता है। इफ यू आर समवन हु इज़ अवेयर अबाउट दिस वाला पार्ट, तो ये सेट आसान है, मतलब उसके लिए क्वेश्चन ही थोड़े बहुत ट्रिकी है, बट इतना कुछ नहीं है, मतलब वो शायद 15-20 मिनट में कर लेगा। बट अगर तुम नहीं हो ये वाले पार्ट से फ़ैमिलियर, तो भाई बहुत गंदा फँसने वाले हो इस सेट के अंदर। पेपर वाले फेज़ में दिस इज़ नॉट द सेट व्हिच आई विल बी डूइंग, मतलब ये एकदम लास्ट में करना चाहूँगा, अगर मिल गया तो तुक्का ठीक है। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।